मॉनिटरिंग भी की जा रही है। And we have some big news coming in. 10 companies of Central Armed Police Forces, ITBP, CRPF and CISF deployed at the Red Fort now. ITBP and CRPF to assist the Delhi police in fortifying all access to the Red Fort. Now this comes a day after agitating farmers laid siege at the Red Fort. Now 10 companies of the Central Armed Police Forces, the ITBP, CRPF and CISF have been deployed at the Red Fort. The ITBP and the CRPF to assist the Delhi police in fortifying all access to the Red Fort. Remember, thousands of agitating farmers laid siege at the Red Fort, hoisting the flag, the Nishan Sahib flag, the Sikh flag right on top beside the national flag. In fact, many of those protesters pushed their way through, muscled their way through, rammed through the police vehicles and the forces that were trying to guard the Red Fort. Visuals that came in also showed many of those protesters intimidating the police, so much so that they were pushed off right along the barricades. Gaurav Sawant joining us live for more details on that. Gaurav, we have information that now 10 companies of the Central Armed Police Forces, the ITBP, CRPF and CISF have now been deployed at the Red Fort to ensure that all access to the Red Fort are covered. Because you just look at the destruction that's all around. This is the quick reaction team vehicle of the Central Industrial Police Force, the CISF, and see how this vehicle was completely vandalized by the vandals, by the protesters here at Red Fort. But now look around. You have the CISF that is deployed. You have the Indo-Tibetan Border Police, the ITBP that is deployed here, and you have the Central Reserve Police that's been deployed here. Such was the violence here yesterday. We've spoken to a large number of Delhi police personnel who were deployed here, and they give us details about how in big tractors. This was the gate that the protesters targeted. This is the historic Lahori gate of the Red Fort. When the Prime Minister addresses the nation from the ramparts of the Red Fort, this is where the Tri-Services Guard of Honor is held, and he walks in from the Lahori gate of the Red Fort. The ramparts are right here. That is the flagpost that was desecrated by the protesters yesterday. And look at here, there is total destruction, Nabila, in terms of Delhi police personnel, heavily outnumbered here yesterday because of the number of protesters who came in. Remember, they were supposed to come in. They were supposed to come in. They were supposed to go on their route after 12 o'clock. But 9 o'clock they violated the barricade, broke open. Security was in place for the Republic Day parade. Additional forces were protecting the Republic Day parade area and the tableaus which are on the other side of the fort. This is the area from where they came rushing in, and the policemen had to dive into the moat behind me. And you can see many shoes, caps, bulletproof jackets, all of them still lying here in this entire moat area. But now, look around me. There is so much force that's deployed here. About 1,000 personnel of the CISF, CRPF. All right, Gaurav, do stay with us. We have some big news coming in right now. A big declaration by the farmers. The farmer union leader, VM Singh, says AIKSCC is withdrawing from the farmers' protest. Here, a lot of questions asked about what next, what's the future of the farmers' agitation. And here, VM Singh, one of the farmer union leaders, says that his union, that is the AIKSCC, is withdrawing from the farmers' protest. Remember, the farmers' protest has gone on along the borders for at least 65 days. They've been protesting relentlessly for asking for farm laws to be completely quashed and a guarantee on MSP. After the farmers' tractor rally turned violent, now the farmer union leader VM Singh says he and his members are going to be withdrawing from the farmers' protest. Let's take a listen, his big declaration. तो अब आपके जो साथी किसान हैं वो आज यहाँ से विदा ले लेंगे, आज से विदा लेना शुरू कर देंगे। वो उनके ऊपर है, पर मैं तो उनसे कह रहा हूँ भाई हम लोग समाप्ति हो गया। ये जो AIKSCC के नेतृत्व में आपने ये मुहिम शुरू की थी और आप देखें तो 26 नवंबर की जो कॉल थी वो AIKSCC की थी, जिसके आप संयोजक थे। हमारी कॉल थी। तो जो बाकी संगठन के जो और घटक हैं उनका क्या रुख है, खासतौर पे कल के घटना के बाद? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दिल की बात है, जमीर की बात है। ये हर हिंदुस्तानी के
हर हिंदुस्तानी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आंदोलन को ठेस पहुंचे, जिसमें किसान को ठेस पहुंचे और जिसमें हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। कल मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नहीं चार मीटिंग करी है। कल रात को करी, सुबह करी और आखिर में आने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे, कुछ भाइयों ने फिर से मुझसे अंदर आके बात की। 3 लॉट वहां पर घर पे भी आए बात करने के लिए और एक निर्णय लिया है। ये हमारा निर्णय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, ये AIKSCC का निर्णय नहीं है, ये VM सिंह का निर्णय है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, हमारा जितना हमारे पद अधिकारी हैं सबका निर्णय है। Have you conveyed this to the committee at Singhu Bhajan? I have no reason to convey to anybody. हमसे सीनियर नहीं है, हमसे जूनियर नहीं है, वो अपना चला रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं भाई। और क्या चाहिए? हमारा मुद्दा एक था, आप हमारी बात को आगे रखे, आपने नहीं रखा, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे आपको। इससे बड़ी सपोर्ट कौन दे सकता है? अब आपका आगे प्रोटेस्ट सर, हाउ विल यू सी, इन व्हाट फॉर्म? यू विल सी। मैं इतना कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश किसानों को, जितना धान आपका बिका है वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, VM सिंह के ऑर्डर से बिका है, इतना आपको वायदा करना चाहता हूँ। मैं वायदा कभी नहीं करता, वायदा करना चाहता हूँ जितना इस साल बिका है इससे कम से कम दुगना अगले साल बिकेगा आपका धान, सरकारी खरीद पर, MSP पर। सर, व्हाट इफ गवर्नमेंट कंसीड्स ग्राउंड, आप क्या क्रेडिट लेंगे? अगर मान लीजिए सर उसके बाद चल रहा है आपके निकल जाने के बाद और गवर्नमेंट ग्राउंड कंसीड करता है और MSP वाली जो बात है उसकी मान ली जाती है, तो विल यू टेक दैट क्रेडिट? देखो, एक चीज जब आदमी हट जाता है तो क्रेडिट नो क्रेडिट की बात ही नहीं आती है यार। आज मैं क्रेडिट के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने कितना क्रेडिट मुझे दे दिया जब मैं आपको मालूम भी था कि 1 लाख करोड़ रुपया किस किस के घर में गया है? क्रेडिट दिया मुझे। VM सिंह क्रेडिट के लिए नहीं है, मुद्दों के लिए आता है VM सिंह। ठीक सर। थैंक यू सो मच। नीरज एक मिनट सर। All right, that was VM Singh, who says that decisions that were taken simultaneously, they were accepted by all the unions, but some of them, including that of Rakesh Tiket, have marched on their own. They've in fact deviated from the plan that was actually decided upon, and considering that some of these farmer union leaders aren't really sticking to plan, it appears that he wants to pull out from this agitation. He promises though that he's still going to fight and ensure that MSP is guaranteed to the farmers. But here is VM Singh saying that he pulls out from the farmers' agitation. He says enough is enough. Here's what he says. Let's take a listen once again. हमारा निर्णय स्पष्ट है। VM सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया। ये काम नहीं है। All right, I'm going to quickly cut across to Abhishek Mishra, who's having a conversation with VM Singh. Let's take a quick look. तोड़ दें, हम लाल किले में झंडा चढ़ा दें, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है? आज ये गरिमा हमारी नहीं है, ये देश की गरिमा है। ये हमारे बाबा, उनके पिता, शायद उनके भी पिता, उनके संघर्ष के कारण तो आज जो है हमें मिला है ना, आजादी मिली है। इस संविधान के तहत ही मैं इनके लिए, किसानों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए गन्ने का रेट दिलवाता हूं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर मैं संविधान को ठेंगा दिखा दूं? ये नहीं हो सकता। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या राकेश टिकैत या दूसरे और भी जो नेता हैं उनका अड़ियल रोक, उनकी बयानबाजी, या फिर आपको लगता है कि अब सिर्फ जो कल की घटना हुई है? मेरे हिसाब से जहां जहां कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह, जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे? हाँ थे सर। उनसे पूछा जाए ना।
ये तफ्तीश का एक मुद्दा बने, जितने कमेटी के लोग हैं, कि तुम कहां थे भाई, तुमने किसको रोका, कितने वॉलंटियर बनाए, रूट गाइड तुमने क्या किया। केवल राकेश टिकैत से बात नहीं बनती है यहाँ। जिन जिन ने बैरियर में तोड़ने का काम किया, क्या प्लानिंग पुरानी थी या प्लानिंग आज की थी, ये सब चीज देखनी पड़ेंगी ना। इसलिए जो है, क्या ये पूरी प्लानिंग थी? आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने इसे प्लान किया? मैंने वही आपसे कहा कि ये तो तफ्तीश का काम है ना, क्या प्लानिंग पुरानी थी। अगर आप कह रहे हो कि झंडा फहराने की बात पुरानी थी, उस पर अवार्ड भी मिला है, तो चांस ये भी है कि ये प्लानिंग हो सकती है पुरानी। किसने प्लान करा, कैसे प्लान करा, वो तो मेरा काम नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट एजेंसी का काम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी ऐसे किसान आंदोलन को खराब नाम देने का, किसानों को खराब नाम देने का काम ना हुआ हो। ये लोग जो है, ये खुद भूखा रहता, किसान खुद भूखा रहता है। आपको लगता है कि धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई इसमें ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपको वापस लेना पड़ रहा है? मैं कह रहा हूं ना आपको, किसान खुद भूखा रहता है, देश को खिलाने का काम करता है। वो यहाँ पर आके बदनाम करने की बात नहीं करता है, देश को डाउन करने की बात नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो हमारा मुद्दा था, मुद्दे से भटक गए कल, मुद्दा बन गया कि कौन झंडा लहराएगा, कौन लाल किला जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा। मुद्दा था कि हमारे एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून कैसे बनेगा, ये बिल वापस कैसे होंगे। लगता है मुद्दे से भटक गए कहीं ना कहीं। तो 3 बिल को वापस लेने की जो मांग थी कि बिना 3 बिल वापस लिए हम यहां से नहीं हटेंगे, लेकिन आप छोड़ रहे हैं। हम तो पहले आदमी थे, 1.5 महीने से हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हम तो 3 बिल की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो आप गारंटी दे दो हमारी खरीद की। हम जाने को तैयार हैं, वो देने को तैयार नहीं। और जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं सरकार की, उनसे एक वार्ता, दूसरी वार्ता, 11वां वार्ता। हम तो बार बार कह रहे थे बिल तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारी खरीद की गारंटी हो जाए। केवल इनके घर में अगर पैसा पहुंच जाएगा, 1868 रुपए इस साल का, अगले साल जो भी रेट होगा 700-800 रुपए का फर्क पड़ेगा 1 क्विंटल धान के ऊपर, तो 15-16 हजार, 14-15-16 हजार रुपए अगर फायदा होता है एक किसान को 1 एकड़ पे, उसको वो फायदा है या यहाँ से दिल्ली छू के आने का फायदा है। लेकिन वीएम सिंह जी, आप पर आरोप ये भी लगेगा कि आपने इस आंदोलन के साथ धोखा किया, क्योंकि आप सबसे पहले ये कहने वाले लोग होंगे कि मैं जा रहा हूं, मैं यहाँ, मेरा आंदोलन खत्म होता है, मैं यहाँ से जा रहा हूं। अगर हम एक वायदा करते हैं, सब मिलकर लिखत में देते हैं कि हम इस रूट पे जाएंगे और बाकी आसपास गड़बड़ नहीं करेंगे, और गड़बड़ हो जाए, तो क्या आप आंदोलन के साथ रहेंगे या कहीं जमीर भी आपकी होगी? जो आदमी संविधान के तहत 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को फायदा करा चुका, उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों को 25 साल में जिंदगी के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया, छोटी स्टेट्स का तो बजट होता है 1 लाख करोड़ भाई। वो आदमी संविधान के दिन संविधान को ठेंगा दिखाएगा या अपने जमीर से काम लेगा? आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि आगे का अगला कदम आपका क्या है? क्या आपके समर्थक, आपके लोग, आपकी टीम के लोग, सब लोग इस जगह को खाली करेंगे, बॉर्डर को खाली करेंगे, क्या होगा? ये मैं अपने साथियों पे छोड़ूंगा, इतना कहते हुए कि अगर तुम्हारा हल इस आंदोलन से होता है तो तुम सोचो। मुझे लगता है कि आंदोलन ने एक किसान के नाम के ऊपर, जो किसान, फिर मैं कह रहा हूं, खुद भूखा रह के देश को खिलाता है, उसके नाम पे ऊपर धब्बा लगा दिया है। उस आंदोलन के साथ चलने का फायदा नहीं। आंदोलन चलेगा, एमएसपी का आंदोलन चलेगा, क्योंकि हमारा 20 साल पुराना आंदोलन था, और जब तक नहीं मिलेगा हम करेंगे। हम अपनी एक मीटिंग करेंगे, उस हिसाब से आंदोलन को चलाएंगे। कोर्ट में जाना हो कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना जाएंगे। और अगले साल इनको धान का रेट इस साल जो मिला है, जितना उनको मिला है, उससे ज्यादा दिलवा के। राकेश टिकैत को कितना जिम्मेदार मानते हैं? अब ये तफ्तीश का मामला है। हम मानते हैं कि यहाँ पर होड़ लग गई है नेतागिरी की, ना के मुद्दे की। यहाँ पर जो है गांव-गांव से चंदा लिया जा रहा है, गांव-गांव से सब कुछ लिया जा। जबकि हमने कहा यहाँ चंदा कोई लेगा नहीं, चंदा नहीं, सामान बहुत बाहर से आ रहा है, चंदा कह के ले लो। वो उनको देखना है, तफ्तीश मालूम चलेगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इतना मुझे ये है, जो अपनी जबान पे नहीं रह सकता, उस शख्स, उस संगठन के साथ हम लोग आंदोलन करके आगे नहीं चल सकते। आप पर एफआईआर हुआ?
क्या फर्क पड़ रहा है? एफआईआर हुआ है क्योंकि हमने वही रास्ता अपनाया है जो हमें दिया गया। अगर इस पे एफआईआर हुआ है तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वीएम सिंह, पहले नेता इस पूरे आंदोलन से जिन्होंने खुद को विड्रॉ किया है। कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं और अपनी टीम पर ये छोड़ते हैं कि वो आंदोलन में आगे क्या करेंगे, लेकिन सब All right, that's a huge development there. VK Singh, who is one of the farmer union leaders of the AIK-SCC, says that he pulls out of the agitation, considering that not all the farm union leaders are on the same page. There are many fractions, and he's quite upset with the fact that they haven't adhered to the plan that was given, approved by the police on Republic Day, Jan 26th. He says the farmers are not happy. In fact, even the Nishan Sahib flag that was hoisted on right at the Red Fort is not something that many of the farm leaders take pride in. He's very upset with the fact that all the farm union leaders weren't on the same page, and he now calls off his protest. His union pulls out from the farmers' agitation.